Recording is in progress. Thank you, Alexa. Got it. Let's begin the show. Okay. A very good morning to everyone. A very good afternoon to everyone, and a very good evening to everyone. Be it anytime you watch it, just watch it, and please maintain the necessary discipline. If you have the necessary discipline, you can achieve everything in life. Fine. Now see, will continue with our chapter named current electricity. We are in the 10th episode, but this is by now it's the 12th video. अगर अभी आप सोचोगे भैया 12 वीडियो देख लिए, but if I give you 12 videos to watch on a single day, it is impossible. But if we can watch only 2 videos every day and make the necessary notes, after 6 days, it becomes 12 videos. After 10 days, it becomes 20 videos. That means within, this is how it works. Take one step at a time. Okay, what we were discussing is we are talking about combination of resistors. We were talking about parallel combination. Today we'll talk about parallel combination. We have seen that if we want to study combination of resistors, there are three possible ways. Number one is series. Number two is parallel. And number three is both series and parallel. And we have also seen that for series we had done in the previous class that something called R equivalent resistance. When we have a series combination of series resistors, then the equivalent resistance is actually equal to the sum of the algebraic sum. That's it. जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो होता है सिंपली अलजेब्रिक एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. सारे इंडिविजुअल रेजिस्टर्स को ऐड कर दो, बस बात खत्म. We'll talk about today about parallel combination, and this series combination is just both series and parallel क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन. सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कुछ नया नहीं है. So this we have discussed, this will discuss today. Okay. Okay. Before we proceed any further, let's just answer this question. I had given this question as a homework in the previous episode. Let's just solve it. Suppose a conductor of resistance 10 ohm is given to you. You have a conductor of resistance 10 ohm. ठीक है, जितना मन चाहे उतना यूज करो, कोई रोक टोक नहीं है. But the problem is you have resistors of 10 ohm only. Okay. Now the question is, how can you obtain a resistor of resistance of any other numerical value? Suppose 20 ohm and 40 ohm. आपके पास 10 ओम है, आपको कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए, मोर देन 10. सो क्या करोगे? हम लोग पढ़े हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप करने से रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सो कैन आई से for number 1, for 20 ohm we will connect to 10 ohm resistors in series. समझ में आया? जैसे अगर एक 10 ओम है, ये भी एक 10 ओम ले रहे हैं, दोनों को सीरीज में जोड़ देना, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम. तो इसका अगर आप इक्विवेलेंट बनाओगे, यहाँ पे अगर इसको हम R1 बोल दें, इसको R2 बोल दें, तो यहाँ पर एक सिंगल हम बना सकते हैं, इसको R इक्विवेलेंट होगा. और R इक्विवेलेंट कितना होगा? R इक्विवेलेंट होगा R1 plus R2. That means 10 plus 10, that is 20 ohm. तो आंसर आ गया 20 ohm. बात समझ में आया? इजी इजी पीजी. एंड सिमिलरली अगर आपको 40 ओम चाहिए तो आप क्या करोगे? फॉर 40 ओम वी विल कनेक्ट, हम इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, 4 10 ओम इन 4 10 ओम इन सीरीज. मतलब कि यहां पर
ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, सबका 10 ओम, ये 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, और ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट बनाएंगे, अगर ये R इक्विवेलेंट है, तो इस केस में R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 which is equals to 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 which is equals to 40 ohm। आ गया आंसर, समझ में आया? इजी, वेरी इजी यार, वेरी इजी। ओके, let's move to the next part now we will talk about parallel combination। What will talk about? We'll talk about parallel combination। Fine. We understood what is series combination, what do we mean by series combination। Now let's try to understand what do we mean by parallel combination। Okay, चलिए, आपके पास मान लेते हैं 3 रेजिस्टर्स है, कितना है? 3 रेजिस्टर्स है। See, there's a difference between resistors and resistance। रेजिस्टेंस इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस हो गया एडजेक्टिव और रेजिस्टर हो गया नाउन, एक ऑब्जेक्ट, और ये एडजेक्टिव है, इसका प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। these are different things। fine, resistors and resistance are two different words which I'm using very frequently। okay, आपके पास 3 रेजिस्टर्स है, इसको 1 मान दे रहे हैं, इसको 2, इसको 3। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसका R2, इसका R3, इसका एंड A एंड B, इसको एंड C एंड D एंड E। फाइन, सीरीज कॉम्बिनेशन का आपको समझ में आ गया था? हाथ पकड़ के, ये आप 5 दोस्त लोग एक साथ लाइन में खड़े हो और फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। फाइन, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है यहाँ पर सुन लीजिए कि in parallel combination the resistors are so connected, the resistors are so connected, the resistors are so connected that all the one end of the resistor A B C, sorry बच्चे की लोगे जान क्या, A B C D E F, सुन लो, one end of all the resistors, ध्यान सुनना, one end of all the resistors, ये जो एंड है एक रेजिस्टर का, ये जो एक एंड है एक रेजिस्टर का, ये जो एंड है एक रेजिस्टर का, these are all connected to a common point, these are all connected to a common point, whereas the another end of the resistors are also connected to one given point। बात समझ में आया? इसको मान लो एंड x बोल रहे हैं, इसको एंड y बोल रहे हैं। So as a result of which now this is then connected with a battery of potential difference V such that a current I flows in the, current I is produced in the, net current I is produced in the circuit। बात समझ में आया? ऐसे है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। वेयर सीरीज में क्या है, तीनों लाइन से खड़ा है, एक ही लाइन में है, तीनों एक ही लाइन में है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। फाइन, यहाँ पे क्या हुआ, वन एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट, whereas one end as the other end of all the 3 resistors are connected to another common point। fine fine, अब ये अगर यहाँ पर ये तीनों रेजिस्टर्स R1 R2 R3 when connected to a battery of potential difference V, करंट I प्रोड्यूस किया सर्किट में, मतलब कि यहाँ पर ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है I, ये तीनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता
कि जो काम ये तीनों मिलकर कर रहा है, जो काम ये तीनों मिलकर कर रहा है, काम क्या है? करंट आई प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा नहीं समझ क्या कोई अकेला बंदा आके ये तीनों का काम कर दे? दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट सर्किट। वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट सर्किट। मतलब कि जो रोल ये दोनों मिलके, मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी था, पोटेंशियल डिफरेंस V था, और जो रोल ये दोनों मिलके कर रहा था तीनों, उसकी जगह पर क्या एक ऐसा बंदा नहीं है जो अकेले कर दे? काम क्या है? ये बैटरी से करंट आई निकाल दे, सच दैट यहाँ पर रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को आ गया आर इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आर इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल, क्योंकि पैरेलल पढ़ रहे हैं हम, समझ रहे हैं? और यहाँ पर ये जो आर इक्विवेलेंट का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पर 1/r equivalent, reciprocal of r equivalent is equals to reciprocal of r1 plus reciprocal of r2 plus reciprocal of r3। ये बात आपको समझना पड़ेगा। देखो सुनो, सीरीज में क्या था? सीरीज में क्या था? एल्जेब्रिक एडिशन था। सीरीज, फॉर सीरीज, SERIS, फॉर सीरीज R इक्विवेलेंट था सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, 1r1 plus r2 plus r3, ठीक है? बट फॉर पैरेलल क्या है? फॉर पैरेलल सबका रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। रेसिप्रोकल मतलब तो समझ में आता है, वन उल्टा करना, उल्टा। सो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट ये क्या है? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ R equivalent is equal to sum of the reciprocals of individual resistors, sum of the reciprocals of individual resistor। बात समझ में आया? ये होता है आपका, ठीक है? ओके, समझने के लिए अब आते हैं इसका, एक बार डिराइवेशन कर लेते लोग। डिराइवेशंस आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको नहीं लिखना है तो मत लिखो, नोट्स में नहीं इंक्लूड करना है तो मत करो, बट एटलीस्ट लिसन इट वंस, लिसन टू इट एट वंस, एक बार सुन लो बस। फाइन, फाइन, ओके। We have discussed what do we mean by parallel combination. In parallel combination we have seen that one end of the resistor is connected to one common point A and the another end is connected to common point B. Fine, fine. मान लेते हैं यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप V है, सच दैट करंट I फ्लो किया। जब करंट I फ्लो करके जा रहा है, जब वो पॉइंट A पे पहुंचेगा, यहाँ पर उसको तीन रास्ता मिलेगा, इस पॉइंट से उसको तीन रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं कि जो करंट है वो चला गया अलग अलग, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट I1 गया, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस करंट I2 गया, एंड R3 के अक्रॉस करंट I3 गया। फाइन, फाइन। दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट इज डिफरेंट, तो नेट करंट है इज इक्वल टू सम ऑफ एल्जेब्रिक सम, सॉरी, द करंट, फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोग समझ में आया कि जो करंट है, द करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट रेजिस्टर। फाइन, फाइन, हो गया। अब एक बार ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनना। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी कितना है? अक्रॉस बैटरी कितना है? कितना है? V है, V। बट ये V किसके बराबर है? हम बोल सकते हैं, सिंस करंट A से B फ्लो करेगा, सिंस करंट मेरा A से B में जाएगा, हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा VA माइनस VB, ठीक है, विच इज सेम एज V के बराबर। फाइन, फाइन। बट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना होगा बताओ तो? मान लेते हैं V1,
एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना होगा? रेजिस्टेंस R1 है, करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बोल सकते हैं? ये हो जाएगा I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। पर एक्चुअली में ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा सोच के बताओ। ये प्लीज ध्यान से सुनना। अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ लिखे इसको, लिखना मन नहीं करे, कहाँ लिखे, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता है, यहाँ लिखता है। पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना होगा बोलो तो। R1 रेजिस्टर का एक एंड A पर है, दूसरा एंड B पर है, तो हम बोल नहीं सकते इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी VA माइनस VB, मतलब बैटरी का पोटेंशियल के बराबर होगा। सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 वो कितना होगा? अगर आप ध्यान से नोटिस करो, R2 का एक एंड A है, दूसरा एंड B है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? VA माइनस VB के बराबर होगा, which is same as the बैटरी का पोटेंशियल। and in a similar manner potential drop across R3 कितना होगा? वो भी सेम VA माइनस VB होगा, which is same as B। तो यहां से हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मिल रहा है कि, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सुन लो पहले, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये भी होगा V के बराबर, विच इम्प्लाइज, बोल सकते हैं हम यहाँ से I1 हो जाएगा V बाई R1। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 कितना होगा बोल सकते हैं, R2 के क्रॉस बात हो रहा है, ये हो जाएगा करंट I2 इंटू रेजिस्टेंस R2, और ये किसके बराबर है? ये V के बराबर है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहां से हम बोल सकते हैं I2 हो जाएगा V बाई R2, and similarly potential drop across R3 ये हो जाएगा I3 into R3 which is equals to, ये भी V के बराबर, which implies जो I3 का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा V by R3। बात समझ में आया? तो फाइनली अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दें, इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया जाए, तो जो रोल ये तीनों मिलकर प्ले कर रहा था वो रोल एक अकेला बंदा भी प्ले कर पाएगा, ताकि जैसे कि अगर उसको बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप V से जोड़ा गया है तो वो करंट I प्रोड्यूस करके देगा, सच दैट अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V हो जाएगा I R इक्विवेलेंट, विच इंप्लाइज यहां से I हो जाएगा R V बाई R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आपके पास I का वैल्यू है, यहाँ पर आपके पास I का वैल्यू है, यहाँ पर I1 का वैल्यू है, यहाँ पर I2 का वैल्यू है, यहाँ पर I3 का वैल्यू है। इन सबको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं क्या मिल जाएगा मेरे को? यहाँ मिल जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, एंड सिंस पोटेंशियल सेम है तो सारा का ऊपर का V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट आ गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मुझे पता है आप लोगों को अच्छे से कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर फिर से एक बार देख लें, इसका डेरिवेशन नहीं आना है, डेरिवेशन इज नॉट इन सिलेबस, डेरिवेशन इज नॉट इन सिलेबस। फाइन, ठीक है, हटाओ इसको। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको पहले का कुछ समझ में नहीं आया है ये सुन लो अच्छे से। पहला पॉइंट, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर
parallel combination, potential drop across each resistor is same and is equal to the external potential drop. अगर ये V है तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V होगा, इसके अक्रॉस V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा। अगर ये V का वैल्यू 30 वोल्ट है तो हर एक के अक्रॉस 30 वोल्ट होगा, हर एक के अक्रॉस 30 वोल्ट होगा। फाइन फाइन। द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। ये बात समझ में आ गया हम लोग को, क्योंकि यहाँ से करंट अगर आई आ रहा है तो सिंस यहाँ पे उसको तीन अलग अलग रास्ता मिल रहा है, तीनों के अक्रॉस कुछ कुछ फ्लो कर जाएगा डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट वहां से ज्यादा फ्लो करेगा, सीधा बात है। ओके now the net current in the circuit is equal to sum of the current through each resistor। ये तो सीधा बात है, जो नेट करंट इन द सर्किट प्रोड्यूस हो आई वो हो जाएगा करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का एल्जेब्रिक सम। फाइन फाइन। यहाँ पे देख लो, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ये समझा चुके हैं आपको हम। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल मतलब वन बाय दैट, is equal to sum of the reciprocal of individual resistors, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ठीक है, and the resistance of the combination decreases। चलो कर दिखाते हैं। R1 को आप 1 मान लो, R2 को 10 मान लो एंड R3 को 100 मान लो। समझ में क्या बोल रहा हूँ? R1 का वैल्यू 1 ओम है, R2 का वैल्यू 10 ओम है, R3 का वैल्यू 100 ओम है। सबसे छोटा वैल्यू रेजिस्टेंस कौन सा है? सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है? R1 है। कितना है? 1 ओम के बराबर है। चलिए आइए चेक करते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे 1 बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हो जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 100। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों का एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा 100। ठीक है, और अब इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा? यहाँ पे एलसीएम 1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आंसर कितना है? आंसर हो जाएगा 1 1 1 बाई 100। ये है 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ये है 1 बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट नीचे है तो रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर आ जाएगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल करोगे तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 100 बाई 111। अब अगर मुझे इसका एग्जैक्ट वैल्यू जानना है तो मैं इसे कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ, माथा बिल्कुल काम नहीं कर रहा मेरा। ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 111, आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.9 ओम। देखो यहाँ से क्या सीखे हम लोग कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज डिक्रीज। एंड देखो इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू था 1 ओम, जो आर इक्विवेलेंट आया वो इससे भी कम है 0.9। तो बोल रहे हैं the equivalent resistance of the combination is less than the smallest of all resistance in parallel। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस था, 100 10 1, सबसे छोटा था 1 ओम, पर जो आर इक्विवेलेंट आया पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो उससे भी छोटा है। बात समझ गया? बस हो गया खत्म। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। If n resistors of resistance R1, R2, R3, R4 dot 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 Rn are connected in parallel। अब पैरेलल में दिया है, पहला क्वेश्चन पूछा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर आर इक्विवेलेंट। इजी, आपको पता है पैरेलल में क्या होता है? रेसिप्रोकल एडिशंस होता है। पैरेलल में क्या होता है? रेसिप्रोकल एडिशंस होता है। दैट मींस 1 बाई R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 plus
डॉट 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 प्लस 1/Rn। ठीक है, हो गया आंसर खत्म। बस और क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ विल द एक्सप्रेशन फॉर आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज व्हेन ऑल द रेजिस्टेंस बिकम इक्वल। इफ R1 becomes equal to R2 becomes equal to R3 is equals to R4 is equals to Rn equals to R से मान लेते हैं R के बराबर है। इन दैट केस हम बोल सकते हैं नंबर 2 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये भी 1/R, इसका वैल्यू भी R है, इसका वैल्यू R3 का वैल्यू भी R है, R4 का वैल्यू भी R है, प्लस डॉट 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 ये Rn है, मतलब ये भी R है। तो ये R कितनी बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं बोलते हैं 1/R प्लस डॉट 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 डॉट। एक सेकंड, एक सेकंड, ये 1/R कितनी बार रिपीट हुआ है, 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट कितनी बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स। अगर ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम डायरेक्टली नहीं बोलते 1/R इंटू n, मतलब ये हो जाएगा n/R। पर ये है आपका 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो, बोथ साइड इसको कर दो, ये हो जाएगा R/n। यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो रेजिस्टेंस n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, बट सीरीज में क्या था, n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये था सीरीज के लिए, सेम क्वेश्चन था जब हम लोग सीरीज के लिए किए थे, ये था पैरेलल के लिए। मतलब कि सीरीज में n टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, बट पैरेलल में n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इसको याद रखना, इसको याद रखना। अगर आप सुनो, सुन लो, अगर आपके पास 5 ओम रेजिस्टर है और ऐसा रेजिस्टर आप 6 रेजिस्टर्स को, ऐसा 6 रेजिस्टर आप सीरीज में डालते हो, सीरीज, तो आर इक्वल कितना हो जाएगा, डायरेक्टली बोल देंगे एन आर, कितना हो जाएगा, एन मतलब 6 है, 6 30 आंसर खत्म, कहानी खत्म हो गया। That's it, solved। पर वही अगर आप ये 5 ओम रेजिस्टर्स का आपके पास अगर 6 रेजिस्टर्स है और आप उसको पैरेलल में ऐड कर रहे हो, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, R/n, और वो हो जाएगा कितना, R है 5, ये है 6, कितना हो जाएगा 5/6, बहुत कम हो जाएगा, मुझे पता नहीं, माथा भी काम नहीं कर रहा मेरा। 5/6 0.83, 0.83। बात समझ में आया, तो ये बोलना चाहते हैं आपको हम लोग, उसको ये चीज आप याद रखो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, you have two resistors of resistance R1 and R2 connected in parallel, find R equivalent, find R equivalent। आपके पास 2 रेजिस्टर्स है, ये हो गया रेजिस्टेंस R1, ये हो गया रेजिस्टेंस R2, ये दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसमें पैरेलल में। इस केस में इसका जो ये R, इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट, इसका जो वैल्यू होगा वो होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये हम चाहते हैं कि आप याद रख लो, फॉर 2 रेजिस्टर्स ओनली, फॉर 2 for 2 resistors, for 2 resistors in parallel, in, ये क्या हो गया, what just happened right now, पता नहीं क्या हो गया, रुक जाओ।
दिखाई दे रहा है? चलो तो दिखाई दे रहा है, सुनो। उफ, कुछ गायब हो गया। अच्छा ठीक है, छोड़ो। अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स है, सुन लो पहले बात, सुनो इसको सब समझ बताओ। अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स है R1 एंड R2 इन पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट होता है R1 इंटू R2 बाई R1 का। देख लो, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। हम लोग को पता है 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट हम चाहते हैं आप डायरेक्टली याद रख लो। अब इसका एलसीएम करोगे तो आएगा यहाँ पर R1 इंटू R2। R1 इंटू R2 को जब डिवाइड करोगे R1 से बचेगा R2, R2 इंटू 1, R2 यहाँ पे आ जाएगा। जब इन दोनों को इससे डिवाइड करोगे तो R2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R1, R1 इंटू 1, R1। ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट। अब दोनों, अगर दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लें हम, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये बात हम बोल रहे हैं आपको, इसको याद रख लो। मतलब कि अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन दे अगर हम आपको, ये अगर मान लीजिए 10 ओम है और ये अगर 20 ओम है, तो आपका आंसर कितना होगा? डायरेक्टली बोल देंगे हम लोग, डायरेक्टली R इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस बाई सम ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब 10 इंटू 20 हो जाएगा 200 बाई 10 प्लस 20 30। ये कैंसर, ये कैंसर, 20/3, 20/3 कितना होगा? अराउंड 8, 6.77 के आसपास हो, 6.7 के आसपास होगा। बस ऐसे करेंगे हम, ठीक है? तो इससे तो आज का कहानी ये भी खत्म करते हैं हम लोग। ये हो गया। तो इस केस में आपको होमवर्क दे रहे हैं हम, आप बताओगे कैसे सॉल्व करोगे इसको। ये वाला 3, 4, 5, दैट्स इट, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड फाइनली गुड नाइट। And please remember, discipline is the most important aspect of anyone's life. Thank you so much. Have a nice day.